تفصیلی خبروں کا آغاز کریں گے۔ شہر قائد میں برسات کے بعد شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے بلدیاتی انتظامیہ نے مختلف مقامات پر ایمرجنسی کیمپ قائم کر دیے ہیں۔ اس وقت ہمارے بیورو چیف محمد کامران زہری، چیئرمین گلبرگ نصرت اللہ اور میونسپل کمشنر گلبرگ حمید سہاگ کے ہمراہ شاہ منزل پر موجود ہیں۔ کامران زہری، آگاہ کیجیے گا کہ کس طرح سے ریسکیو ریلیف کا کام کیا جا رہا ہے وہاں پر؟ ہاں جی، دیکھیے اس ٹائم ہم موجود ہیں شاہراہ پاکستان پر، جو مرکزی شاہراہ ہے گلبرگ ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر رین ایمرجنسی جو ہے کیمپ لگایا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم جو ہے ٹاؤن چیئرمین نصرت صاحب بھی موجود ہیں، میونسپل کمشنر حمید سہاگ بھی موجود ہیں، اور ابھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں سر، یہ ریلیف کیمپ لگایا ہے، کیا دشواریاں پیش آ رہی تھی عوام کو جس کی وجہ سے یہ ضرورت پڑی؟ شکریہ آپ کا۔ یہ گلبرگ ٹاؤن ایڈمنسٹریشن کا کیمپ ہے، اور پچھلی جو اسپیل تھا بارش کا اس میں معلوم ہے کہ اصل میں یہاں ایز سچ تو بڑا ایشو نہیں آتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ KDD اسکیم ہے اسٹارم ڈرین واٹر کی، جو کہ ٹورڈز لندی کوتل سے یاسین آباد تک کی ہے۔ یہ اچھی اسکیم ہے، میں یہ بھی کہوں گا، لیکن تعطل کا شکار رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاٹ ہول سے جو ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی اور التوا کا شکار ہے۔ اگر یہ مکمل ہوتی تو اور ایشوز نہیں آتے۔ گیم چینجر منصوبہ ہے ایک طریقے سے، یہ اچھا ہے، اچھا منصوبہ ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ وقت پر کیا جائے، اور وقت پر ہوتا بہرحال کچھ اس کا مکمل ہوا، لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے پورٹل وغیرہ کھولے نہیں تھے۔ وہ الحمدللہ گلبرگ ٹاؤن کی انتظامیہ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی انتظامیہ آپ کے ساتھ آن بورڈ ہے؟ جی بالکل، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بھی موجود ہے، اور گلبرگ ٹاؤن کا اپنا جو کیمپ ہے جس میں سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ، BNR ڈپارٹمنٹ، اور ہم نے الحمدللہ پوری مشینری یہاں موجود رہی ہے۔ کل پورا دن الحمدللہ گلبرگ ٹاؤن کی انتظامیہ نے، منتخب نمائندوں نے آپ کو یہاں کوئی بھی ٹرنچز میں کوئی گاڑی اگر بیٹھی ہوئی تو اس کو لفٹ کیا گیا ہے، کوئی رکشہ یا خراب ہوا ہے، کوئی بھی چیز ہوئی ہے، کل پورا دن تک یہ 2-2:30 بجے تک آپریشن الحمدللہ ہمارا رہا ہے، اور اس کو پوری ٹیم نے الحمدللہ ایک جوائنٹ اینڈ وینچر کے طور پہ کیا ہے۔ اور گلبرگ کے اندر میں بڑے شرائع صدر سے بات کہتا ہوں کہ گلبرگ جو تھا اس میں یہاں کا ٹریفک کا فلو، یہاں جو لوگ مسافر تھے، آنے جانے والے لوگ، یہ سمجھے سینٹرل کا ہب بھی ہے، پورے کراچی یہاں سے موو کرتا ہے۔ حمید سہاگ صاحب موجود ہیں، یہ میونسپل کمشنر ہیں، ان کی عام ترین ذمہ داری ہے گلبرگ ٹاؤن کے حوالے سے۔ حمید صاحب، بہترین اقدامات دکھ رہے ہیں۔ ماضی میں ہم دیکھتے تھے یہ شاہراہ جو ہے ڈوبی رہتی تھی، بڑے مسائل رہتے تھے۔ گلبرگ ٹاؤن کی انتظامیہ نے آخر اس بار کیا جادو چلایا ہے، کیا جادو کی چھڑی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ الحمدللہ ہم جس دن یہ نیا فیز شروع ہوا ہے، ہماری پوری ٹیم جو ہے، پوری ایڈمنسٹریشن جو ہے ہم نے آن بورڈ پوری فیلڈ میں اتاری ہوئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پوری ابھی بھی ہمارے آل ڈپارٹمنٹ سب بیٹھے ہوئے ہیں، چیئرمین صاحب بھی ہیں، پوری سینیٹیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، BNR ہے، میں کھڑا کر رہا ہوں، برابر میں سالڈ ویسٹ کا کیمپ بھی لگا ہوا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ جوائنٹ میں جو ہے میوچل یہ کام چل رہا ہے۔ الحمدللہ گلبرگ ٹاؤن کے اندر الحمدللہ اللہ کا کرم ایسی کوئی بھی کمپلین نہیں آئی۔ سب اچھے کی رپورٹ ہے، الحمدللہ اللہ کا کرم، سب اچھے کی رپورٹ ہے۔ آپ یہاں سے جا کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو مرکزی شاہراہ ہے، اندرونی جو آرٹریز ہیں ان کا کیا حال ہے؟ بالکل الحمدللہ ہر جگہ پہ اللہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں، میرے ساتھ چل سکتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، کوئی جتنی بھی الحمدللہ کوئی ایسا پرابلم میسج کوئی نہیں۔ ہم تھوڑا بہت کئی جگہ پہ پانی ہوگا، ہم اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آن بورڈ ہیں، انشاءاللہ کہیں کوئی کمپلین آئے گی تو ہم بیٹھے ہوئے کب تک بیٹھے رہنے کا آپ کا؟ ہم کل رات میں یہاں پہ 1 بجے گئے ہیں، آج صبح سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آج رات تک بیٹھے رہیں گے۔ دیکھیے جی، یہ ہے میونسپل کمشنر اور ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گلبرگ ٹاؤن، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ الحمدللہ ہم نے جتنا حد الامکان ممکن ہو سکتا تھا عوام کو ریلیف فراہم کیا، اور بظاہر دکھ بھی رہا ہے کہ اگر کوئی شکایت ہے کسی بھی حوالے سے، گلبرگ ٹاؤن کا آفس یہاں پر جو ہے کیمپ لگا دیا گیا ہے، یہاں پر ان کی شکایت کا ازالہ کرنے کے لیے ٹاؤن چیئرمین، میونسپل کمشنر اور ان کا اسٹاف موجود ہے۔ جی ٹھیک ہے کامران، تفصیلات کے لیے شکریہ۔ ادھر مومن آباد ٹاؤن چیئرمین ملک عارف عوان کی خصوصی ہدایت پر سید زین علی شاہ نے دوران برسات رات گئے تک مختلف علاقوں کا دورہ کر کے عوام کو ریلیف کی فراہمی کے کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر، میونسپل کمشنر اورنگی ٹاؤن اور بلدیاتی افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے، جو نکاسی آب، برساتی نالوں کی صفائی، کچرے کی فوری منتقلی اور متاثرہ سڑکوں پر ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے میں مصروف عمل رہے۔ سید زین علی شاہ نے کہا ہے کہ مومن آباد ٹاؤن میں قائم رین ایمرجنسی سینٹرز
मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं, जहां अमले की छुट्टियां मनसूख करके इन्हें दिन रात अवामी खिदमत के लिए मुकर्रर किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इमरजेंसी सेंटर्स में शिकायती सेल कायम है, जहां शहरी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और उनके फौरी अजाले के लिए टीमें रवाना भी की जा रही हैं। बाद अज़ां सैयद ज़ैन अली शाह ने म्यूनिसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहद से उनके दफ्तर में मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों जिम्मेदारान ने बरसात के दौरान अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने और करीबी रवाबित कायम रखने पर इत्तफाक भी किया। इस मौके पर उन्होंने इस आज़म का इजहार किया कि टाउन और डिस्ट्रिक्ट सतह पर बाहमी ताउन के जरिए अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाएगा और किसी भी शिकायत को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सैयद ज़ैन अली शाह ने कहा कि टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ अवान की वाज़ेह हिदायत है कि रिलीफ के तमाम कामों में कोई कोताही बर्दाश्त न की जाए और अवाम को फौरी सहूलियत पहुंचानी है। अव्वलीन तरजीहात में भी शामिल हैं। मोमिनाबाद टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ अवान की खुसूसी हिदायत पर सैयद ज़ैन अली शाह ने दौरान बरसात रात गए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके अवाम को रिलीफ की फरहमी के कामों का तफसीली जायजा लिया है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर म्यूनिसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन और बल्दियाती अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे, जो निकासिया, बरसाती नालों की सफाई, कचरे की फौरी मुंतकिली और मुतासिरा सड़कों पर ट्रैफिक के रवाने को यकीनी बनाने में मसरूफ अमल रहे। सैयद ज़ैन अली शाह ने कहा कि मोमिनाबाद टाउन में कायम रेन इमरजेंसी सेंटर्स मुकम्मल तौर पर फाल हैं, जहां अमले की छुट्टियां मनसूख करके इन्हें दिन रात अवामी खिदमत के लिए मुकर्रर किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इमरजेंसी सेंटर्स में शिकायती सेल कायम है, जहां शहरी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और उनके फौरी अजाले के लिए टीमें रवाना भी की जाएंगी। बाद अज़ां सैयद ज़ैन अली शाह ने म्यूनिसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहद से उनके दफ्तर में मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों जिम्मेदारान ने बरसात के दौरान अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने और करीबी रवाबित कायम रखने पर इत्तफाक किया। इस मौके पर उन्होंने इस आज़म का भी इजहार किया कि टाउन और डिस्ट्रिक्ट सतह पर बाहमी ताउन के जरिए अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाएगा और किसी भी शिकायत को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सैयद ज़ैन अली शाह ने कहा कि टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ अवान की वाज़ेह हिदायत है कि रिलीफ के तमाम कामों में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अवाम को फौरी सहूलियत पहुंचाना ही अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। चेयरमैन गडाब टाउन तारिक अजीज बलोच ने वाइस चेयरमैन जाम मोहम्मद जोखी और म्यूनसिपल कमिश्नर अहमद यार ने हालिया बारिशों के बायस मली नदी, ठड्डो डैम और गडाब के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। दौरे के दौरान इंतजामात, सूरत हाल और हंगामी इक़दामात का तफसीली जायजा लिया। चेयरमैन तारिक अजीज बलोच ने इस मौके पर कहा कि गडाब टाउन इंतजामिया ने बारिशों से निमटने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए हैं। हमारा मकसद अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करना और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। शहरियों से अपील है कि वो गडाब टाउन इंतजामिया के साथ ताउन करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर इतला दें। वाइस चेयरमैन जाम मोहम्मद जोखियों ने कहा कि गडाब टाउन इंतजामिया बारिश के दौरान अवाम की सहूलत और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त सरगर्म है। रिलीफ कैंप्स और एमरजेंसी टीमें फौरी तौर पर अवामी खिदमत के लिए मुतहरिक हैं और हम सब मिलकर इस मुश्किल सूरत हाल का सामना करेंगे। म्यूनसिपल कमिश्नर अहमद यार ने रात गए ठड्डो डैम का भी मुआयना किया और मुताल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी कि डैम के अतराफ हम वक्त अलर्ट रहें, हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। उन्होंने शहरियों को हिदायत की है कि बारिश के दौरान गैर ज़रूरी तौर पर नदी नालों और डैम के करीब ना जाएं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामानी की खुसूसी हिदायत पर शहर भर में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से रेन इमरजेंसी कैंप कायम कर दिए गए हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेंट्रल ने ब्यूरो चीफ मोहम्मद कामरान जैदी से बात करते हुए क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। हाँ जी, देखिए इस टाइम हम मौजूद हैं शाहराह पाकिस्तान के ऊपर, जहां पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से जो हिदायत दी गई थी उनके मैनेजिंग डायरेक्टर तारिक अली निज़ामानी की तरफ से कि कराची के वासियों को रिलीफ फराहम करना है। उस सिलसिले में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सेंट्रल ने शाहराह पाकिस्तान के ऊपर रिलीफ कैंप कायम कर दिया है। आवाम की सहूलियात के लिए, शिकायत को सुनने के लिए, किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इस टाइम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला ऑन ग्राउंड, ऑन फील्ड मौजूद है। हमारे साथ इस टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंट्रल, उनसे बात करेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा सर, क्या हालात हैं, क्या मामला हैं, किस तरीके से सॉलिड वेस्ट इन तमाम मुश्किलात से निमट रहा है? बस ये हालात तो सामने आते, ये गुजरती आफात आती रहती है, लेकिन ये कि हमारा अमला और हमारा डिपार्टमेंट जो है वो
किसी भी तरह से पीछे नहीं रहता, बल्कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं कामों में। अभी देखिए हमारी जो टीमें लगी हुई हैं, हमने कैंप भी यहाँ पे लगाया है मेयर साहब के और एमडी साहब के स्पेशल डायरेक्शंस पे। तो हमारी टीमें काम कर रही हैं, यहाँ पे कचरा भी उठ रहा है और जो पानी आ रहा है रेन का तो उसको भी डिस्पर्स कर रहे हैं। तो हर तरह से स्टेट गवर्नमेंट के और जो बोर्ड के जो काम है वो फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और इसी तरह से जो है ना हम बिल्कुल निपट रहे हैं। अच्छा, एक और यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये आता है कि लोगों की शिकायत हो रही है कि टाउन इंतजामिया और आप लोगों का कोऑर्डिनेशन में कोई फर्क है, या ये कह लें कि आपकी तरफ से उनकी तरफ से कोई परेशानी आ रही है, इस हवाले से कोई ऐसी शिकायत आ रही है आवाम की तरफ से? नहीं, ऐसी हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं। एक आम आदमी आपके पास अपनी शिकायत देगा अगर परेशानी में, तो किस तरह रुजू करें आपको? जी, हमारा 1128 एक नंबर है, उस पर आप कर सकते हैं। हमारी एक मोबाइल ऐप भी है, उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। कोई भी कंप्लेंट हो और हमारी कंप्लेंट जो है विदिन 8 आवर जो है इंशाल्लाह ताला हल हो। देखिए, ये थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। उनका ये कहना था कि हमारे एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निजामानी की तरफ से ये खुसूसी हिदायत है कि किसी की भी कंप्लेन को इजी नहीं लेना, जो भी मसाइल हो अक्रॉस द बोर्ड जाकर उन मसाइल को हल करना है, आवाम को रिलीफ फराहम करनी है। 24 घंटे का ये कैंप फराहम बना दिया गया है इमरजेंसी। इसके अंदर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से शहरियों की सहूलत के लिए हर किस्म का सामान भी मौजूद है। जी, चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख का टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर नूर हसन जोखी और मुताल्लिका अफसरान की टीम के हमरा बारिश के बाद पानी की निकासी और रास्तों को क्लियर करने के काम का जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा। चेयरमैन मंसूर अहमद शेख की हिदायत पर सदर टाउन इंतज़ामिया ने पहले ही हाई अलर्ट रेन एमरजेंसी नाफिज कर रखी है, इसलिए बारिश शुरू होते ही तमाम अमला फौरी तौर पर मुतहरिक हो गया था। दौरे के मौके पर चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने तमाम मुताल्लिका अफसरान और मुलाजमीन को हिदायत दी कि रेन एमरजेंसी के दौरान तमाम अमला मुकम्मल तौर पर एक्टिव रहे ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटा जा सके। उन्होंने शिकायती मरकज़ को भी 24 घंटे फ़ाल रखने की हिदायत दी। मंसूर अहमद शेख ने कहा कि शहर में मज़ीद बारिशों के पेश नज़र सदर टाउन में रेन एमरजेंसी मुसलसल नाफिज रहेगी। मुताल्लिका अफसरान और स्टाफ फील्ड में मौजूद रहेंगे। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने कहा कि शहर में मुतवक्के मज़ीद बारिशों के पेश नज़र बारिशों से होने वाले मुमकिन नुकसानात से बचाव, बरसाती पानी की निकासी और अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए बरसाती पानी की निकासी के काम को मॉनिटर कर रहा हूँ। निकासी आपका काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर नूर हसन जोखी ने कहा सदर टाउन में एमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम है, जिसके क़याम का मकसद अवाम की शिकायत पर बर वक्त एक्शन लेना और उन्हें फौरी रिलीफ फराहम करना है। एमरजेंसी सेंटर पर अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए सैनिटरी और सेवरेज स्टाफ समेत महकमा पार्क्स, बिल्डिंग एंड रोड और मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का अमला ज़रूरी सामान जिनमें ओपन ट्रक, ट्रैक्टर, डी वाटरिंग पंप्स वगैरह शामिल हैं मौजूद रहेगा। खबर आपको दें कि चेयरमैन सोहराब गोट लाल अब्दुल रहीम ने रात गए लियारी नदी के करीब आबादियों का दौरा करके जारी सूरत हाल का जायजा लिया है। इस मौके पर चेयरमैन सोहराब गोट लाल अब्दुल रहीम ने कहा कि थद्दो डैम के ओवरफ्लो होने से लियारी नदी के अंदर शदीद तूफ़ानी के सबब लियारी नदी से मुंसलिक सोहराब गोट टाउन की आबादियों में पानी उभर आया। इस पर बहुत से रिहायशी खानदानों ने फौरी तौर पर घरों को खाली कर लिया, जबकि बहुत से घराने पानी की शदीद यकदम तूफ़ानी पर महफूज मुकाम पर ना मुंतकिल हो सके। महफूज मुकाम पर ना मुंतकिल होने वाली फैमिलीज अपने घरों की छतों पर महसूर हो गए थे। फौरी अमल दरामद करवाते हुए रेस्क्यू टीमें और मुतालिका महकमे जल्द तलब किए गए और घरों की छतों पर महसूर हो जाने वाली फैमिलीज की रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवा दिया था। ठड्डो डैम और ओवरफ्लो के सबब लियारी नदी में शदीद तूफ़ानी के बाद सोहराब गोट टाउन की ज़ेर-ए-आब आने वाली आबादियों में बरसाती पानी का लेवल कम होना शुरू हो गया है। इस मौके पर चेयरमैन सोहराब गोट टाउन लाला अब्दुल रहीम के अहकामात पर ज़ेर-ए-आब आने वाले घरानों के लिए सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और मेटरनिटी होम्स में मुतासरा खानदानों को मुंतकिल किया गया। मुश्किल की इस घड़ी में सोहराब गोट टाउन की अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा होने वाले हर घराने के दुख में हम उनके साथ हैं। इस वक्त कराची में थड्डो डैम के ओवरफ्लो और मूसलाधार बारिश के सबब अर्बन फ्लडिंग पर टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सोहराब गोट टाउन का हर एक फर्द, ज़िला इंतज़ामिया, सिंध गवर्नमेंट के तमाम मुताल्लिक़ इदारे और अफवाज पाकिस्तान अवाम के हर मुश्किल जल्द अज जल्द मुकम्मल हल करने के लिए मुसलसल अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं।
दूसरी जानिब चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान ने म्यूनसिपल कमिश्नर माड़ीपुर जावेद कमर के हमरा लियारी नदी से मुतसिल मोहम्मदी कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी और दीगर मकामात का दौरा किया है। इस मौके पर बल्दियाती अफसरान और बल्दियाती नुमाइंदे भी मौजूद थे। चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान ने इस मौके पर कहा कि बरसात के बाद की सूरत हाल को नज़र में रखते हुए उन आबादियों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है जिन आबादियों में पानी भर गया है। उन मकामात पर डी वाटरिंग पम्प्स लगा दिए गए हैं और पानी को नालों तक मुंतकिल किया जा रहा है। म्यूनसिपल कमिश्नर माड़ीपुर जावेद कमर ने कहा कि सिंध हुकूमत की मशीनरी और टाउन की मशीनरी आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए फील्ड में मौजूद है। जल्द हालात कंट्रोल में आ जाएंगे। नालों को बरसात से कबल ही साफ़ कर दिया गया था। हम आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। मशीनरी और अमला फील्ड में रहकर आवाम को रिलीफ फराहम कर रहा है। टाउन में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम अमले और अफसरान की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच ने म्यूनसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी के हमरा रात गए मली नदी में तोग़यानी और एतराफ़ के नशीबी इलाकों का तफसीली जायजा लिया है। इस मौके पर मेंबर कौमी और काउंसिल सैयदुल्लाह, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहमतुल्लाह मेमन, डायरेक्टर सैनिटेशन नसीर अयूब, इंफॉर्मेशन ऑफिसर सलीम खान, इलाकाई मकीन और दीगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। चेयरमैन मली टाउन ने मुर्गी खाने के तरफ मली नदी से मुतहसिल नशीबी इलाकों में बंद को मिट्टी डालकर मजीद मजबूत बनाने के काम का बराह रास्त निगरानी की है और अमले को हिदायत दी कि निकासियाब के कामों में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच ने बादजां सुबह सवेरे मक्सी गोट, मुर्गी खाना और नेशनल हाईवे एयरपोर्ट के तरफ नशीबी इलाकों का भी दौरा किया और बारिश के पानी की निकासी के जारी कामों का जायजा लिया है। उन्होंने मौके पर मुतालिक अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि निकासियाब के पंप और मशीनरी 24 घंटे फॉल रखी जाए, नशीबी इलाकों में इमरजेंसी टीमें तैनात की जाएं और बारिश के पानी की निकासी में किसी भी किस्म की रुकावट फौरी तौर पर दूर की जाए। अवामी शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाए और नदी किनारे बंदों को मजीद मजबूत करने का अमल तेज किया जाए ताकि किसी मुमकिन नुकसान से बचा जा सके। चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि आवाम की खिदमत अव्वलीन तरजीह है और नशीबी इलाकों में पानी की निकासी के अमल को मजीद तेज किया जा रहा है ताकि शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा सके। इंशाअल्लाह जल्द तमाम मुतासरा मकामात पर हालात मामूल पर आ जाएंगे। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खेली ने रात गए दौरा करने के बाद दिन में भी सफूरा टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और निकासियाब की सूरत हाल का मुआयना किया है। इस मौके पर उन्होंने निकासियाब के काम तेज़ी से सरअंजाम देने की हिदायत देने के साथ साथ सीवरेज के जारी कामों को भी जल्द मुकम्मल करने का कहा है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल कंट्रोल में है। सफूरा टाउन निकासियाब के काम सरअंजाम देने के लिए गुज़श्ता रात से मसरूफ़ अमल है। मुसलसल बरसात की वजह से निकासियाब के काम में गैप आता रहा है लेकिन इस सिलसिले को जारी रखा गया है। निकासियाब के काम ताहाल जारी हैं और जल्द ही उन्हें मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने टाउन के सीवरेज मसाइल को दूर करने की हिदायत दी थी जिस पर तेज़ी से काम जारी है। पहलवान कोट रोड पर जारी काम के मुकम्मल होने के बाद सफूरा टाउन में निकासियाब का बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा और कई आबादियों में बरसाती और सीवरेज के मसाइल दूर होंगे। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बरसात जो तेज़ तरीन थी उसमें भी दिन रात काम करके आवाम को रिलीफ फराहम किया था। इस मरतबा भी जल्द अज जल्द रोड्स और इलाकों को क्लियर कर दिया जाएगा। इस मौके पर उनके हमरा यूथ टाउन काउंसलर अदनान जावेद और टाउन के अफसरान भी मौजूद थे। म्यूनसिपल कमिश्नर आलमगीर जुनेजो, वाइस चेयरमैन अब्दुल हक बलोच ने भी मुख्तलिफ जगहों और समामा पर मौजूद रेन एमरजेंसी कैंप का दौरा करके निकासियाब के काम का मुआयना किया और निकासियाब के हवाले से अहकाम जारी किए। अपोजिशन लीडर KMC सैफुद्दीन एडवोकेट का मुंतखब बल्दियाती क़यादत के हमरा शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। इस मौके पर सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा कि नालों की बदतरीन सूरत हाल आवाम के सामने है। मेयर कराची की जानिब से किए गए तमाम दावे हवा की नज़र हो गए हैं। नालों की सफाई के लिए खती रकम खर्च की गई लेकिन इकदाम कहीं नज़र नहीं आए। सैफुद्दीन एडवोकेट ने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। नाले पानी नहीं लेंगे, लेकिन आप सूरत हाल देखिए, जिन नालों को साफ कह रहे हैं, पीछे ये नाला पूरा किस तरीके से चौक हुआ है। इसको देखने के बाद कोई आदमी ये कह सकता है कि नालों की सफाई हुई है, और इसको देखने के बाद कोई आदमी ये तसव्वुर कर सकता है कि खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो पानी कैसे निकलेगा। इसमें से तो पानी निकलेगा ही नहीं। उसके बाद आप चौधरी की चांद की बात करें,
اس کے بعد آپ 40 ملی میٹر کی بات کریں تو پھر یہ شرم کی بات ہے کہ آپ کام نہ کروائیں. 1 ارب روپیہ آپ کو ملا ہے, اس کو آپ پتہ نہیں کہاں پر جو ہے دریا برد کر دیں, نالا برد کر دیں, اور پھر یہ اس طرح کے بہانے بنائیں. یہ مناسب نہیں ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب, کراچی کے آپ نے میئرشپ سنبھال لی ہے, قبضہ کر لیا ہے, تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ذمہ داریاں بھی نبھائیں. کراچی کے لوگوں کو ڈوبتا مت چھوڑیں اور ٹک ٹاک نہ بنائیں, پریس کانفرنسیں کر کے لوگوں کو مس ریپرزینٹ نہ کریں. جو آپ کا کام ہے اس کو کروانے کی کوشش کریں. بلدیہ ٹاؤن میں رین ایمرجنسی چیئرمین عبدالکریم آسکانی خود فیلڈ میں متحرک ہو گئے. اس موقع پر چیئرمین بلدیہ ٹاؤن عبدالکریم آسکانی نے کہا کہ حالیہ شدید بارشوں کے پیش نظر بلدیہ ٹاؤن میں ایمرجنسی اقدامات پہلے سے ہی کر لیے گئے تھے اور تمام ادارے متحرک تھے. بارش کے پانی کی جلد از جلد نکاسی کے لیے آپریشن مزید تیز کر دیا گیا ہے. عبدالکریم آسکانی رات گئے تک بھی سڑکوں پر موجود رہے اور اپنی نگرانی میں نکاسی آپ کا کام کراتے رہے. اس دوران عوامی ٹرانسپورٹ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو, اس کے لیے چیئرمین نے خود راستوں پر موجود رہ کر موٹر سائیکل اور گاڑیوں کو راستہ دینے میں بھی مدد فراہم کی. اس موقع پر ایم پی آصف موسیٰ, سینئر نائب صدر پی ایس 111 حاجی عبدالکریم بلوچ, ڈپٹی جنرل سیکرٹری کراچی ڈویژن امیدوار, وائس چیئرمین یونین کونسل آرٹ فیصل موسیٰ, سینئر رہنما خلیفہ اور ایس ایچ او تھانہ مدینہ عرفان میو بھی موجود تھے اور انہوں نے چیئرمین بلدیہ ٹاؤن سے ملاقات کی. عوامی خدمت کے جذبے, فیلڈ میں موجودگی اور عوام کی خدمت پر چیئرمین عبدالکریم آسکانی کی کاوشوں کو بھرپور انداز میں سراہا گیا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ابراہیم حیدری نذیر احمد بھٹو نے میونسپل کمشنر مسرور نواز خشک, سپرنٹینڈنٹ انجینئر سہیل ملا, ڈائریکٹر مشتاق مٹو اور دیگر افسران کے ہمراہ یو سی مجید کالونی, یو سی مظفر آباد, یو سی شاہ لطیف اور یو سی چوکنڈی کا تفصیلی دورہ کیا ہے اور بارشوں کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا. بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے نالوں اور سڑکوں کا معائنہ بھی کیا گیا ہے. اس موقع پر ڈائریکٹر سینیٹیشن مشتاق مٹو کی جانب سے رین ایمرجنسی کے حوالے سے کیے گئے انتظامات پر بریفنگ دی گئی. اس موقع پر ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ابراہیم حیدری ٹاؤن کی انتظامیہ نے بارشوں کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروکار لائے ہیں. بارشوں سے پہلے ہی ہم نے نالوں کی صفائی کروائی تھی, جس کی وجہ سے بارش کے دوران ہمیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ نشیبی علاقوں میں جمع بارش کے پانی کی نکاسی کروائی گئی ہے. مسلسل بارشوں کے باعث پانی نکالنے کے بعد سڑکوں پر دوبارہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے, جس کے لیے عملہ اور مشینری مختلف علاقوں میں کام کر رہی ہے. ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے مزید کہا کہ ٹاؤن انتظامیہ بارش کے دوران عوام کی سہولیات اور ان کے تحفظ کے لیے ہر وقت موجود ہیں. شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ایمرجنسی ٹیمیں فوری طور پر عوامی خدمت کے لیے متحرک ہیں. انہوں نے افسران کو ہدایت کی ہے کہ سڑکوں سے پانی کی نکاسی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے. ریلیف کے کاموں میں کسی بھی قسم کی کوتاہی, غفلت یا سستی برداشت نہیں کی جائے گی. آخر میں انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ بارش کے دوران غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں, احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوراً ابراہیم حیدری ٹاؤن میں قائم رین ایمرجنسی سیل کو اطلاع دیں. چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک نے شاہ فیصل ٹاؤن کی تمام محکموں کے افسران کے ہمراہ حالیہ برسات میں شاہ فیصل ٹاؤن کی تمام یو سیز کی شاہراہوں اور نالوں کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے. چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک نے کہا کہ بلدیاتی نمائندگان اور شاہ فیصل ٹاؤن کے تمام محکموں کے افسران حالیہ برسات میں عوام کو ہر ممکن بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے 24 گھنٹے موجود ہیں. چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن نے مزید کیا کہا, آپ کو سنواتے ہیں. یا کا نام تو یا کہ اس وقت ہم ویٹا چورنگی پہ موجود ہیں اپنے پورے شاہ فیصل ٹاؤن کے اسٹاف کے ساتھ, اور ہم نے تقریباً تمام جو ہمارے مین روڈ ہیں ان کا وزٹ کیا. شکر الحمدللہ مین روڈوں کی حالت بہت بہتر ہے. اندر علاقوں میں پانی ہے, موجود ہے, بہت بارش ہوئی ہے. انشاءاللہ جیسے ہی بارش چھوٹے گی اور دھوپ نکل آئے گی پھر ہم مشینیں لگا کے اندر علاقوں کلیئر کریں گے. اس وقت میں ویٹا چورنگی پہ موجود ہوں. ویٹا چورنگی پہ 2 پوائنٹ ایسے جہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے 7000 روڈ پہ, اس پہ بھی ہمارا کام چل رہا ہے. اب ہم سنگر چورنگی جائیں گے اور انشاءاللہ جتنے بھی شاہ فیصل کے باہر مین روڈ ہے وہ سارے کلیئر ہیں. اندر کے جو مسئلے اس پہ انشاءاللہ ہمارا جیسے بارش رکے گی دھوپ نکل آئے گی اس پہ ہمارا کام
स्टार्ट हो जाएगा। बताने का मतलब ये है कि रात भर भी हमारी टीमें एक्टिव रही है और अभी भी एक्टिव है, और इंशाल्लाह जब तक ये लोगों के मसले हल नहीं हो जाते, बारिश का पानी निकल नहीं जाता है, चाहे दिन हो रात हो, शाह फैसल टाउन की टीम काम करती रहेगी। आवाम से भी गुजारिश है कि थोड़ा सफर करें और जहाँ जहाँ मसले हो रहे हैं वो हमें इन्फॉर्म करें। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में सारे मसले हम हल कर पहुँचते हैं। और कराची में PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने मलिर की शाहराह भुट्टो का दौरा किया है और मंसूबे को करप्शन और नाकिस मनसूबाबंदी की नज़र करार दे दिया। उन्होंने कहा कि 54 अरब रुपए का ये मंसूबा तबाही के नारे पर है, जिस पर यूरोप ममालिक की सड़कों से भी ज़्यादा लागत दिखाई गई है, मगर ये पहली बारिश में ही बह गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मंसूबा अभी मुकम्मल नहीं हुआ था कि आधा बारिशों में तबाह और बाकी कट लगाकर तोड़ दिया गया। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। 54 अरब का मंसूबा, अरे भाई हमारी सिंध के लोगों की तो लाज आपने रखी नहीं। इस शहर कराची को तो आपने कभी कुछ समझा नहीं। अपने भुट्टो की लाज रख लेते, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की लाज रख लेते, मोहतरमा रानी की राज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लाज रख लेते। चलो उनकी ना रखी आपने, अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो की लाज रख लेते। भुट्टो शाहराह भुट्टो और उसका हासिल ये हुआ एक बारिश में छुट्टो, शाहराह भुट्टो एक ही बारिश में छुट्टो। मैं कहना चाहता हूँ जुल्म ना कीजिए, ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये हमारा पैसा है, इस शहर कराची और सूबे का पैसा है, जिसको आप खाने वाला कौन? मिस्टर मासूम। ये KMC बना रहा प्रोजेक्ट, इसके अंदर जो बिलियंस की करप्शन हुई है उसके जिम्मेदार KMC है। मैं कहना चाहता हूँ हम पीछा करेंगे, क्योंकि हमारे फंड्स हैं, ये शहर हमारा है, ये वोटर हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है। आप तो फॉर्म 47 के नाजायज लोग बैठे हुए हैं, हम आए हैं अपनी जान रिस्क पे लेकर आए, हम नीचे उतरे हुए हैं, लेकिन बताएं तो सही कौम को, जरा देखें कि ये अशर हुआ है, ये है वो मलिर नदी और वो शाहराह भुट्टो जो एक ही बारिश में छुट्टो। 15 साला पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने कराची को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। शाहराह भुट्टो का तबाहाल होना पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस और सिंध हुकूमत की नाकामी का वाज़ेह सबूत है। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी का पार्लिमानी लीडर्स और अरकान सिंध असम्बली के हमरा शाहराह भुट्टो और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, जहाँ जगह जगह पानी जमा होने से अवाम सख्त अजियत में मुब्तला हैं। उनका कहना था कि जिस सड़क को पीपल्स पार्टी ने अपने कायद से मंसूब किया, आज वही बदतरीन हालत में है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मलिर एक्सप्रेस में शाहराह भुट्टो के नाम से जो सिंध हुकूमत ने मंसूब किया, उस पर हम खड़े हैं मेमन गोड के मकाम पे। और आपको बताता चलूँ कि इससे पहले आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि पूरा जो ये शाहराह भुट्टो है, ये बह के जो है वो पानी ने अपनी जगह रिक्लेम कर लिया। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे आप तो माई नियाड़ी के मकाम पे इन्होंने जो है वो ब्रिज तामीर किया था, ताकि जो नेचुरली पानी को प्रिजर्व करने के जो यहाँ सहूलत मौजूद है उसको जो है वो यूटिलाइज़ किया जा सके, उसको ख़राब नहीं किया। वहाँ पर माई नियाड़ी के मकाम पे पुल बना लिया। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिवर जो बेड से ही मट्टी निकाली है, उससे जो है इन्होंने ये पूरी इम्बैंकमेंट तमाम चीज़ें की हैं, और उसका नतीजा ये हुआ कि जब बारिश आई है तो उस बारिश ने अपना पानी अपनी जगह दोबारा लिया, और ये पूरा जो रोड है जो ये बना रहे थे मलिर एक्सप्रेसवे को, वो बह चुका है। बात बड़ी सिंपल सी है कि बदतरीन गवर्नेंस की बात करते हैं सूबे सिंध में, उसकी एक आला तरीन मिसाल जो है वो मेरे अक़ब में आपको नज़र आ रही होगी। कराची में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिशों के बाद नदी नालों में तूफ़ानी और डैम ओवरफ्लो होने से शहर के मुख्तलिफ इलाके ज़ेर आब आने से पानी आबादियों में दाखिल हो गया। सूरत हाल के बायस तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए, जबकि शहर के बाज़ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बायस फ़ौज और रेंजर्स को तलब कर लिया गया। कराची में जारी मुसलसल बारिशों ने शहर को मफलूज कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 129 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके नतीजे में बरसाती नाले और छोटी नदी नालियां उबल पड़ी और रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो गया, जिससे शहरी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। मुतादिद इलाके ज़ेर आब आ गए और दर्जनों खानदान घरों में महसूर होकर रह गए। मरकजी शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी और गाड़ियां कमर तक पानी में फंस गई। इस सूरत हाल ने बदतरीन ट्रैफिक जैम को जन्म दिया, जहां मुसाफिरों को या तो घंटों गाड़ियों में इंतजार करना पड़ा या उन्हें अपनी गाड़ियां छोड़कर पैदल निकलने पर मजबूर होना पड़ा।
शदीद बारिशों के बाइस कारोबारी मराकिज और दुकानें बंद रहीं, जबकि तालीमी इदारों ने हंगामी तौर पर छुट्टियों का ऐलान किया ताकि तलबा महफूज रह सकें। जिले इंतजामिया ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन शुरू करते हुए नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया और मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद फराहम की। जिले इंतजामिया ने रात भर पानी की निकासी की कोशिशें जारी रखी, मगर बारिश के हजम के बाइस रफ्तार सुस्त रही। कई इलाकों में करंट लगने के खदशे के पेश नज़र बिजली काट दी गई, जिससे शहरी मजीद मुश्किलात से दो चार हो गए। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि शहर के मगरिब में बनने वाला डिप्रेशन बारिश के नए बादल कराची की तरफ धकेल सकता है, जिससे मजीद बारिशों का खतरा है। कराची में मुसलसल बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के दौरान डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस आवाम की खिदमत के लिए सरगर्म है। SSP ईस्ट की हिदायत पर पुलिस अफसरान और जवान बारिश से मुतासरा इलाकों, सड़कों, नशेबी मकामात पर तैनात हैं, जहां शहरियों की मदद और रहनुमाई के फ़राइज़ अंजाम दिए जा रहे हैं। SSP ईस्ट खुद फील्ड में मौजूद हैं और सूरत हाल का मुसलसल जायज़ा ले रहे हैं ताकि इमदादी और सिक्योरिटी सरगर्मियों को मौसर बनाया जा सके। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस ने रेस्क्यू टीमों के हमरा सैकड़ों मुतासरा शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पुलिस टीमें बिलखुसूस लियारी एक्सप्रेस वे, नदी, सादी गार्डन, नश्तर बस्ती, शारा फैसल, साइड सुपर हाईवे और दीगर मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, जबकि आवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। रेस्क्यू टीमें और पुलिस एहलकार हम वक्त मुस्तैद हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि मोटरसाइकिल पुलिस और मोबाइल गश्त में भी इजाफा किया गया है ताकि शहरियों को फौरी मदद फराहम की जा सके। डायरेक्टर जनरल PDMA सैयद सलमान शाह ने बारिशों और रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी है। DG PDMA के मुताबिक हालिया बारिशों के बायस लियारी और मली नदी के तरफ की आबादी ज़्यादा मुतासर हुई। अब तक मजमूई तौर पर 325 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि शाम 5 बजे गडाप टाउन में एक वैन फंसने की इत्तला मिली, जिस पर फौरी कार्रवाई की गई। इस मौके पर PDMA की 9 टीमें और रेस्क्यू 1122 के 50 एहलकार स्टैंड बाय पर मौजूद थे। DG PDMA ने मजीद बताया कि इस वक्त लासी गोट में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां तकरीबन 400 एहलकार इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अमल हैं। कराची में हालिया बारिशों के पेश नज़र एडिशनल IG की हिदायत पर पुलिस टीमें बारिश के दौरान अवामी सहूलियात के लिए मुतहरिक हैं। ज़िलाई और ट्रैफिक पुलिस अफसरान जवान शाहराहों पर शहरियों की मदद में मसरूफ़ हैं। पुलिस टीमें ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के इक़दाम भी देख रही हैं। नशेबी और पानी जमा होने वाले मकामात पर पुलिस की अवामी रहनुमाई जारी है, जबकि बारिश के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल में पुलिस फौरी इमदाद फराहम कर रही है। हालिया बारिशों, दरियाओं में बढ़ते हुए पानी के पेश नज़र सिंध हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी हैं। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि कराची में बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रही है। उनका कहना था कि डैम भरने और शदीद बारिशों के बायस लियारी नदी और मली नदी में तुग़यानी आई, जबकि समंदरी में ऊंची लहरों की वजह से भी बारिश के पानी के अखराज में ताख़ीर हुई है। शदीद बारिशों के बायस कुछ नशेबी इलाकों में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आइंदा 24 से 48 घंटों में बारिश के एक और स्पेल की पेशगोई की गई है। ताहम हुकूमत सिंध मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। अगर मजीद बारिश ना हुई तो सूरत हाल कुछ ही घंटों में मामूल पर आ जाएगी। उन्होंने बताया कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सरबराही में शहरी हुकूमत, PDMA और तमाम मुतालिका इदारे मुतहर्रिक हैं। सैलाबी सूरत हाल के हवाले से शर्जील इनाम मेमन ने बताया कि कच्चे के इलाकों से पिछले 24 घंटों में 4881 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि अब तक मजमूई तौर पर 1,46,492 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। दरियाओं में पानी की सूरत हाल के हवाले से शर्जील इनाम मेमन ने बताया कि टर्मो और पंजन के दरमियान दरमियाने दर्जे का, जबकि पंजत और गुड्डू के दरमियान इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। गुड्डू और सखर के दरमियान दरमियाने दर्जे का सैलाब जारी है। सोराब गोड के करीब लासी पाड़ा के अतराफ पानी भर जाने से लोगों के फंसने की इतला पर चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर एक्टिंग कमिश्नर कराची तारिक चांडी और DC जाय वकुआ पर पहुंच गए। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक रेस्क्यू की जानिब से फंसे हुए लोगों को निकालने का अमल जारी है और अब तक 15 बच्चे, एक ज़ईफ़ और 4 ख़वातीन को रेस्क्यू कर लिया गया है।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 15 अफराद को रेस्क्यू करने पर रेस्क्यू टीम को शाबाशी दी है। मली नदी गखर और गिरदनवाह में पानी का बहाव तेज हो गया, मगर आवाम का गैर संजीदा रवैया इंतजामिया के लिए मुश्किलात का बाइस बन गया। गुज़िश्ता रोज़ कई हादसात के बाद भी आवाम घरों से बाहर हैं और आवाम का सेल्फी और एडवेंचर का शौक किसी हादसे का बाइस बन सकता है। सूबा सिंध के मुख्तलिफ शहरों में होने वाली बारिश के अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची शहर में 47.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ठट्टा में सबसे ज़्यादा बारिश हुई, जहां 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह बदीन में 20 मिलीमीटर, हैदराबाद सिटी में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि दादू में 56.4 मिलीमीटर और टंडोजाम में 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब मीरपुर खास में 38 मिलीमीटर और मिट्टी में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेयर कराची और डिप्टी मेयर सारी रात आवाम के साथ शहर में मुतहरिक रहे। उनका कहना था कि सूबाई वज़रा और इंतज़ामिया के अफसरान भी मेरे साथ मौजूद हैं, हम सब मिलकर आवाम की खिदमत कर रहे हैं। मुराद अली शाह ने बताया कि गुज़िश्ता रात मलीर में 4 इंसानी जानों के ज़ियाब पर अफसोस है, जबकि कॉजवे के करीब मली नदी से लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। वक्त है और हमें उम्मीद है कि जो पानी आएगा उसको हम खैर आफियत से समंदर तक उड्डू बराज, सक्खर बराज और कोटड़ी बराज क्रॉस करा के हम समंदर तक पहुंचा सकेंगे। कराची शहर में जो बारिश हुई है उसको तो काफ़ी मुस्तैदी से, इसलिए कि 2 दिन से हमने पूरी इंतज़ामिया को अलर्ट किया हुआ था। हमारे सारे इंतज़ामिया वाले, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की साइड के हों, चाहे पुलिस के हों, चाहे हमारे PDMA हो, रेस्क्यू 1122 हो, हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर सारे फील्ड में मौजूद थे। हमारी पुलिस फील्ड में मौजूद थी और एक बेहतर तरीके से वो सारा हैंडल हुआ। M9 भी बंद करनी पड़ी, मलीर नदी में बहुत पानी आया, लियारी नदी में बहुत पानी आया, लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा। और मैं इस बात पे सेटिस्फाइड हूँ और शाबाशी भी देता हूँ सारी एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो अपने टोस में रही। हमारी PDMA की टीम्स, हमारी रेस्क्यू 1122 की टीम्स, फिर हमने जब सादी टाउन की तरफ पानी आ रहा था, हमें पता ही आता है, तो उधर फिर सादी टाउन में हमने पाकिस्तान आर्मी से भी कहा कि हमारी मदद करें। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, ये सब आए। हमने नंबर्स हैं मेरे पास, मैं ये हैंड आउट दे दूँगा। 350 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है डिफरेंट जगहों से। हुकूमत सिंध की तैयारियां जो है। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए 5 न्यूज़।